अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ऋतिक रोशन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हीरो ऑफ द नेक्स्ट डेकेड ऋतिक रोशन ट्रिब्यूट मैशअप। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Wow, great. Congratulations, आपका बेटा हुआ है। कितना प्यारा बच्चा, बड़ा होके ज़रूर हीरो बनेगा। He's undoubtedly the best looking man in the business, the most glamorous actor I know, the man with the most beautiful pair of eyes and a soul to match. Not only an inspiration for all the youngsters, but today inspiration for all of us seniors also. The actor is Hrithik Roshan. You can't take the heat, don't light the fuse. क्या बात है, बहुत आला। क्रेजी हो गए थे लोग इस सॉन्ग पे। Really looked up to the way Hrithik Roshan is involved in videos as an actor. He's someone who really admire and respect. So I always like to believe that another can make as much a contribution as Hrithik as well. He's amazing. You know, the operation to his head. He comes up with what's happening? And he was so positive. He was like, no, you're holding somebody's going to make a hole in your head. You know, okay? He's like, yeah, it's fine. And he was fine. He was so positive. मैंने उनके पिताजी के साथ 3 फिल्में की हैं मैंने, और ये तीनों फिल्म्स में ऋतिक यूज्ड टू बी एज एन असिस्टेंट। तो एक बार खेल की शूटिंग चल रही थी और हम लोग नायरोबी में शूटिंग कर रहे थे वहाँ। आई वाज जस्ट टेकिंग अ वॉक आउटसाइड बिकॉज वी हैड पैक्ड अप अर्ली दैट डे। और चलते चलते ऐसे ही मुझे ना डायलॉग सुनाई दिए कहीं से, और वो भी अनिल जी के डायलॉग से फिल्म में गए। तो मैंने बोला, अनिल जी आजकल इतनी मेहनत करते हैं, मतलब शूटिंग पैकअप हो गया फिर भी रूम में जाके वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, लेकिन आवाज़ अलग थी। तो मैंने बोला, है कौन? तो आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स दैट रूम एंड आई सॉ ऋतिक इनसाइड द रूम, और वो खेल के वो डायलॉग्स वाज रिहर्सिंग कि अगर वो एक्टिंग करते तो कैसे वो बोलता। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। Oh my God. I need to do films that reflect something inside of me. I think was a decision that I think the first time when I saw Hrithik Roshan acting, and I think I saw him in Agnipath, Mission Kashmir, Fazal, like when he does his intense scene, when he does all that. Till then, as a kid, I also used to just see the Pathans do it the way they do it. And then this new guy came, and the intensity he brought to the scene, performance, like he came as a superstar, and this new superstar has come. He was an actor as well.
ऐसे नहीं कह सकती है तो मैं खुद वहाँ पे आके तुम्हारा हाथ पकड़ के take you to the front door and throw you out of this house and out of this job. जिसे मैं तुम्हारा साउस He's raised the standard of acting in this country. लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों. So go on, break the rules. Forgive quickly. Kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably. And never regret anything that made you smile. I think he is such a marvelous dancer. When he dances, it's like poetry. My absolutely stunning superstar, most talented, most good-looking, the coolest movie star India has ever seen, Hrithik Roshan. फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं आपसे सीनियर हूँ, लेकिन मैंने आपकी फिल्म गुजारिश देखी. देखने के बाद मैं साफ कह सकता हूँ एक्टिंग में आप मेरे सीनियर हैं. Hrithik Roshan. The joke about overnight success. You don't know the 15 years that might be called. No, I've never spoken about this. There was one time when we did not have the money to pay the rent. And we had to vacate. For many years of my life, I have struggled through my own handicaps. I think the most difficult phase was when I was 21. I was slip disc at that time. My first slip disc. I went to the best doctor. Doctors ने कहा था मुझे कि I cannot be an actor. I should not be an actor because the shape, genetics is so bad. कि अगर मैंने jump किया या dance किया तो in a matter of 3-4 years I might be under the knife. 50 chance over I'll be on a wheelchair and all that. So all that. How were you used to stammer as well? Because as a child I have howled myself to sleep because I have been made fun of. Only one that I think like is appropriate for me to say right now is when I used to say that I want to be an actor. And I used to go, and people will laugh. I used to stop. It's like, what am I saying? How can I be an actor if I can't even say I want to be an actor? कहो ना प्यार है कि सक्सेस के बाद ऋतिक ओवरनाइट स्टार बन गए और सभी को उनकी अगली खुश का इंतजार था. तो ऋतिक की अगली 3 साल तक कोई भी सोलो लीड फिल्म नहीं चल पाई और माना जा रहा था कि ऋतिक एक वन टाइम वंडर एक्टर है. I remember picking up this magazine which had my face on it and it said, "Finished." I will not be afraid because I will never give up. We people believe in only one thing and live by only one thought. The show must The go show on. must go on. One. Shiva. Bring it on! The best actor. I'm speechless. I'm very confused right now. वो 1-2 साल नहीं हुए, 30-40 साल तक will be the top star. May our children never be afraid to dream the impossible. Because if someone like me can get this far, then impossible is nothing. Dream on, guys. जब कोई सोचे तो बस सोचता रह जाए कि एक बंदे में इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं, यानी ऊपर वाला किसी बंदे को इतनी फुर्सत से कैसे बना सकता है. नॉर्मली लड़कियों के लिए कहा जाता है, लेकिन ऋतिक रोशन वो वाहिद एक्टर हैं, वो वाहिद स्टार हैं जिनको क्या कहा जाता है मोस्ट हैंडसम एक्टर. ठीक है, सबसे पहले तो उनकी खूबसूरती की बात की जाती है. आईज, हाइट, बॉडी. ठीक है, उसके बाद जी अगर हम बात करें उनके डांस की, सही है, डांस ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि उनका मुझे लगता है डांस में उनका कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा सानी नहीं है.
यानी कि डांस के बेताज बादशाह, अगर मैं ऋतिक को कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्या मूव्स हैं उनके, क्या स्टेप्स हैं उनके। अच्छा, जब कोई ऋतिक का, मुझे आज भी याद है, हम तो छोटे हुआ करते थे, धूम मचा रहे बहुत, मतलब बहुत हिट हुआ था। और हर बच्चा उनके जो हुक के स्टेप्स होते वो करा करता था। हमारे स्कूल में बड़ा डांस करते थे उनके सॉन्ग्स के ऊपर। अक्सर ऐसा होता था ना कि पार्टीज़ होती थी या एनुअल फंक्शन होता था, तो उस पर अक्सर ऋतिक रोशन के बहुत सारे सॉन्ग्स होते थे, उनको सेलेक्ट करके और उस पर लड़के डांस किया करते थे। खैर वो जब डांस करते थे तो हंसी निकलती थी हमारे क्लास फेलोज तो ऋतिक है भाई, ठीक है। तो बहुत कोशिश किया करते थे, बहुत प्रैक्टिस किया करते थे, बहुत रिहर्सल हुआ करती थी भाई। हमारा एनुअल फंक्शन काफ़ी बड़ा सा होता था, तो महीनों रिहर्सल भी होती थी। 15 दिन, 1 महीने रिहर्सल चलती रहती थी। क्लास छोड़ के जा रहे हैं भाई, ऋतिक के सॉन्ग्स के ऊपर डांस हो रहे होते थे। तो फिर भी उसके बावजूद भी वो इतने अजीबोगरीब लगते थे कि हम हंस रहे होते थे। और ऋतिक जब कोई स्टेप करते हैं, जब कोई भी डांस करते हैं, किसी भी सॉन्ग के ऊपर डांस करते हैं, वाकई मैं कहूँगी जान डाल देते हैं उस सॉन्ग में, उन वर्ड्स के अंदर जान डाल देते हैं, रूह फूंक देते हैं। ये उनकी कला है, ये उनका टैलेंट है, ये उनकी महारत है, और ये सिर्फ उन्हीं की कला और महारत है, ये कोई और कर ही नहीं सकता, ठीक है। डांस के हवाले से ऋतिक हमारे यहाँ तो भाई मैं बोलूँगी हमारे इर्द गिर्द के लोगों में बहुत मशहूर है, हमारे मुल्क में बहुत मशहूर है डांस के हवाले से। जब डांस की बात होती है तब ऋतिक की बात होती है, जब हैंडसमनेस की बात होती है तब ऋतिक की बात होती है, हाइट की बात होती है तो ऋतिक की बात होती है, हीरो लुक की बात होती है तो ऋतिक की बात होती है। लोग कहते हैं कि हीरो का सिनोनियम अगर होता तो ऋतिक होता। वाकई, यानी कि एक हीरो के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक हीरो जिसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जानी चाहिए, वो सब ऋतिक में पाई जाती हैं। फिर अगर हम एक्टिंग की बात करें, आप जादू मूवी देखें, गुजारिश मूवी वाकई आप देखें। अच्छा, धूम मूवी जो थी उसके अंदर एक्शन भरपूर था, डांस भरपूर था, उनका एक स्टाइल भरपूर था, ठीक है। और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। कहो ना प्यार मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, मेरी फेवरेट मूवीज़ में से है कहो ना प्यार है, उनकी स्टार्टिंग मूवी है। अच्छा, मुझे एक मूवी और भी याद आ रही है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे व्यूवर्स मैं जानती हूँ 100% पहुँच जाएंगे, मुझे बता देंगे। जब मैं बहुत छोटी थी स्कूल लाइफ में, तब की बात है कि वो क्या कहते हैं, मामा ने वो मूवी लगा कर देखी थी। मुझे इसका नाम इसलिए याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं याद। वो बिल्कुल उनकी स्टार्टिंग की मूवी है, और उसके अंदर मुझे हल्की हल्की स्टोरी याद है कि ऐसा हुआ था कि उसमें एक लड़की होती है, उसकी डेथ हो जाती है, और ये उसको बहुत पसंद करती है। इनकी बिल्कुल मुझे स्टार्टिंग की मूवी लग रही है, बिल्कुल इनका करियर स्टार्ट हुआ था उस वक्त, और उसकी डेथ हो जाती है। और ये होता है कि फिर उसके बाद एक दरगाह थी, दरगाह के ऊपर एक सॉन्ग है, और जया बच्चन है, और सॉन्ग नहीं है वहाँ पे, एक शायद कव्वाली टाइप का कलाम है। और ये जो होते हैं, ये उस लड़की का शायद बदला लेने के लिए, क्या करने के लिए, ये गलत फील्ड में चले जाते हैं गलत वे पे चले जाते हैं, और इनकी माँ इनसे बहुत प्यार करती हैं। जया बच्चन इनकी मदर होती हैं। अब मुझे वो मूवी जो है ना, वो पहली मूवी है, मैंने पहली बार ऋतिक को उस मूवी में देखा था, और मुझे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लगे थे। जब मैं खुद छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी, लेकिन तब भी मुझे बहुत प्यारे लगे थे, और मुझे इन्होंने बहुत इम्प्रेस किया था। ये वो पहली मूवी है। अब वो मुझे नहीं पता, मैं खुद 1-2 क्लास की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे स्टोरी भी सही से याद नहीं है। माशाल्लाह मेरी मेमोरी अच्छी है, तो मुझे 2-4 सीन्स उसके याद है, कुछ झलकियाँ याद आ रही हैं हल्का, पूरी मूवी भी याद नहीं है ना, पूरी स्टोरी याद है। लेकिन मुझे उस दिन पहली बार मैंने ऋतिक को देखा था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कब स्टार्ट किया, क्या करा, लेकिन आई थिंक सो वो शायद उनकी फर्स्ट मूवी रही होगी। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी, और वो स्टोरी ऐसी थी कि मेरे दिमाग में आज तक है, मुझे आज तक याद है। तो वाकई इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऋतिक है भाई, ऋतिक को कोई बीट नहीं कर सकता। अक्षय कुमार की तरफ से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलना कि वैसे मैं आपसे सीनियर हूँ, लेकिन गुजारिश मूवी देखने के बाद मुझे लगता है एक्टिंग में आप मुझसे सीनियर हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अक्षय कुमार अपने आप में बहुत बड़े हैं भाई, बहुत सीनियर हैं, कितनी मूवीज़ की हैं उन्होंने। नशीबो फराज हर किसी के मतलब करियर में आते हैं। कभी कभी होता है ना, हमारे साथ बुरा वक्त हमारे ऊपर आता है, कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी मिलने के बाद हमें बुरा वक्त देखने को मिलता है, तो हम झुंझला जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम कहते हैं यार क्या है यार, सबके साथ तो बड़ा अच्छा होता है, हमारे साथ बहुत बुरा होता है, दिमाग ख़राब। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैंने उनकी स्टोरी देखी तो उसमें क्या था कि पहली मूवी तो सुपर डुपर हिट हो गई थी, और उसके बाद उनकी आगे पीछे सारी मूवीज़ जो हैं, यादें ले लें आप, और
क्या नाम है जिसमें तक बोले चुनिया बोले कांगना क्या था, कभी खुशी कभी गम, वो ले लें आप। और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आगे पीछे उन्होंने करी और सारी मूवीज़ फ्लॉप हो गई थी। वाकई में मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि यार कुछ मूवीज़ स्टार्टिंग की जो इन्होंने की वही अच्छी गई, उसके बाद से कोई मतलब सारी मूवीज़ आगे पीछे ही फ्लॉप हो रही थी बदकिस्मती से। लेकिन देखें जिसे बनना होता है, जिसे स्टार बनना होता है, जिसे वाकई मतलब कुदरत की तरफ से, और फिर उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी एक्टिंग बता रहे हैं किस तरीके से मतलब बहुत सीरियस मैटर्स तक हो जाते हैं। मैं हैरान परेशान हूँ भाई कि हमारे काम तो बहुत ईजी, हम कहते हैं एक्टिंग हलवा है, एक्टिंग नहीं जी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत बार मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको बहुत मतलब इंजरीज हो जाती हैं, जिनके साथ बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आएँ ड्यूरिंग द शूटिंग। तो वो अपने काम को लेकर इतना मतलब रिस्क में काम करना, अपने काम को लेकर इतना सिंसियर होना, उसके बाद भी एक्टिंग करना, उसके बाद भी उस कैरेक्टर को लेकर उसको प्ले करना, मूवी को कंप्लीट करवाना, वही उसी लगन के साथ काम करना, मैं बोलूँगी हैरान परेशान होती हूँ मैं। वाकई मुझे कभी कभी लगता है एक्टिंग से मुश्किल की चीज़ कोई भी नहीं। तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करें, वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो अल्लाह हाफिज़।